نیب کا آٹا چینی اسکینڈل میں بھرپور آزادانہ اور قانون کے مطابق کارروائی کا فیصلہ۔ نیب کے مطابق آٹا چینی میگا اسکینڈل ہے۔ اربوں روپے کی ڈکیتی پر نیب خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ قانونی پہلوؤں کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کو آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں 17 اپریل کو طلب کیا گیا تھا۔ شہباز شریف کورونا وبا کا عذر پیش کر کے نیب میں پیش نہیں ہوئے۔ نیب کا اعلامیہ جاری۔ نیب کے مطابق شہباز شریف کو 22 اپریل کو 12 بجے دوبارہ طلب کیا۔ یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ عدم تعاون کی بنا پر نیب قانونی راستہ اپنانے پر حق بجانب ہوگا۔ احتساب سے بچنے کے لیے شہباز شریف کورونا کا بہانہ کر کے پتلی گلی سے بھاگ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں ریاستی ادارے شہباز شریف کی منی لانڈرنگ، اقربا پروری اور ٹی ٹی پر مبنی ڈاکوں کا حساب کتاب مانگ رہے ہیں۔ شہباز شریف کو اپنی کرپشن اور بددیانتی کا ہر حال میں حساب دینا ہوگا۔ شہباز شریف لندن سے کورونا کے خلاف جنگ لڑنے کی بڑکیں مار کر پاکستان آئے تھے۔ اب کورونا کے نام پر ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ کبھی لیپ ٹاپ لیڈر، کبھی ڈاکٹر اور صحافیوں کو مضحکہ خیز حفاظتی کٹس دے رہے ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کورونا وائرس سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت۔ زکوٰۃ فنڈز کی رقم کی ادائیگی میں شفافیت سے متعلق تمام صوبوں اور وفاق سے رپورٹ طلب۔ اسلامی نظریاتی کونسل اور مفتی تقی عثمانی سے رائے لی جائے گی۔ کیا زکوٰۃ فنڈز تنخواہ اور انتظامی اخراجات پر خرچ ہو سکتے ہیں؟ عدالت کا حکم۔ چاروں صوبوں گلگت بلتستان وفاق سے آئندہ سماعت سے قبل کورونا وائرس پر پیش رپورٹ طلب۔ عدالت نے ریمارکس دیے جو بھی صنعتیں کھولی جائیں ان پر فیکٹریز ایکٹ کا معیار یقینی بنایا جائے۔ توقع ہے وفاقی اور صوبائی حکومتیں عوامی مفاد میں متفقہ فیصلے کریں گی۔ کورونا سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت میں سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے۔ کسی صوبے اور محکمے نے شفافیت پر مبنی رپورٹ نہیں دی۔ عوام اور بیرون ملک سے لیا گیا پیسہ نہ جانے کیسے خرچ ہو رہا ہے۔ کھربوں روپے خرچ ہو چکے اور مریض صرف 5000۔ وفاق نے 9 ارب سے زائد زکوٰۃ جمع کی۔ مستحقین تک رقم کیسے جاتی ہے کچھ نہیں بتایا گیا۔ ڈی جی بیت المال بھی زکوٰۃ فنڈ سے تنخواہ لے رہے ہیں۔ قرنطینہ مراکز میں مقیم افراد سے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ سندھ میں راشن کے حوالے سے 8 ارب کے اعداد و شمار پر ہم نے یقین نہیں کیا۔ وفاقی وزارت صحت نے چین کو 2 کروڑ ماسک اسمگل کرنے کا الزام بے بنیاد قرار دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے ممتاز علماء کرام کے وفد کی ملاقات۔ مولانا محمد حنیف جالندھری، مولانا طاہر اشرفی، پیر امین الحسنات شاہ، علامہ راجہ ناصر عباس اور دیگر شامل۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل، مفتی منیب، مفتی تقی عثمانی کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ علماء کرام کے وفد کی لاک ڈاؤن کے حوالے سے وزیر اعظم کے موقف کی بھرپور تائید، مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے عوام جس قدر ہو سکے خود گھروں تک محدود رہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا عوام کو پیغام، کہا جتنا لوگ خود کو نظم و ضبط سے آراستہ کریں گے اتنا اچھا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا دیپالپور میں ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کا دورہ، سہولیات کا جائزہ لیا۔ عثمان بزدار بہاول نگر پہنچ گئے، فوڈ سینٹر اور گندم خریداری کا جائزہ لیا۔ چشتیہ میں دانش اسکول میں قائم قرنطینہ سینٹر کا معائنہ۔ ڈپٹی کمشنر کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو کورونا اور گندم خریداری کے معاملات پر بریفنگ۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 23 ہو چکی۔ اموات کی مجموعی تعداد 181، مریضوں کی تعداد 8648۔ سندھ میں مزید 227 کیس رپورٹ ہوئے، 5 افراد جاں بحق، متاثرین کی تعداد 2767 ہو گئی۔ پنجاب میں 3781، خیبر پختونخوا میں 1235، بلوچستان میں 432، گلگت بلتستان میں 263، اسلام آباد میں 181۔ آزاد کشمیر میں 49 مریض زیر علاج،
KP में 67, सिंध 61, पंजाब 42, बलूचिस्तान में 5 अफराद जाँ बहक, 1970 मरीज सेहतियाब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध में कोरोना वायरस से अमवात की शरह 2.2% हो गई। कराची मजीद 65, खैरपुर में 35, जैकबाबाद टंडू मोहम्मद खान में 8, हैदराबाद में 7 केसेस रिपोर्ट। तफ्तान से ज़ायरीन को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन रोहड़ी पहुंच गई। ज़ायरीन को स्क्रीनिंग के बाद सिंध लाया जाएगा। कराची में मुताबिद सनतों को आज से काम करने की इजाज़त दे दी गई। लांढी कोरंगी की सनतों और फैक्ट्रीज में एहतियाती तदाबीर के साथ मुलाजमीन का दाखिला। वर्कर्स को मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर्स फराहम किए जाएंगे। कोरंगी में SOPs की खिलाफ वर्जी पर फैक्ट्री सील। कमिश्नर कराची ने लॉकडाउन में खुलने वाले कारोबार को जिले इंतजामिया के इजाजतनामे से मुस्तस्ना करार दिया। कारोबार, इंडस्ट्रीज और रेस्टोरेंट्स को हुकूमती SOPs का ख्याल रखना होगा। आवाम की खाफ लीग पंजाब के नायब सदर सलीम बरियार से मुलाकात। कहती है, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। इख्तलाफी अमूर को एक तरफ रखकर मुल्क के मुफाद का सोचना होगा। हुकूमत कोरोना के सदेबाब के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। सलीम बरियार कहते हैं, इत्तेहादी होने के नाते तहरीक इंसाफ के मुल्की मुफाद में हर इक़दाम की हिमायत करते हैं। कोरोना वायरस से निमटने के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास। शाह महमूद कुरैशी, बाबर अवान, ख्वाजा आसिफ, राजा परवेज और दीगर अराकीन की शिरकत। मुआवन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, 60% वायरस का फैलाव मुकामी अफराद से हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से वायरस के फैलाव में कमी आई। रोजाना 20,000 टेस्ट की सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने टेस्ट की तादाद बढ़ाने के लिए वफाक से मुआवनत का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स को 60,000 किट्स की तकसीम की गई, जो न है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, नून लीग की जानिब से 25,000 से जायद किट्स पूरे पाकिस्तान में तकसीम की जा चुकी। डॉक्टर्स के साथ शाना बशाना खड़े हैं। ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं, कोरोना के खिलाफ कप्तान नहीं, डॉक्टर्स डट कर खड़े हैं। कौम का बच्चा बच्चा डॉक्टर्स को दुआ दे रहा है। सक्खर की जिले इंतजामिया की जानिब से डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 84 फुट तवील सफेद परचम लहरा दिया गया। मेयर सक्खर, रेंजर्स, पाक फौज, पुलिस और जिले इंतजामिया के आला अफसरान का तिब्बी अमले को सैल्यूट। बलोचिस्तान में पोलियो का नया केस सामने आ गया। महकमा सेहत बलोचिस्तान के मुताबिक जिला पश्चिम की 8 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। बलोचिस्तान में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 6 हो चुकी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। इंडेक्स 700 से जायद पॉइंट्स इजाफे से 33,540 पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 57 पैसे कमी से 163 रुपए जात पहुंची। गुलिस्तान जौहर कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए मुबैना तौर पर काम करने वाला पुलिस का ASI गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहजाद परवेज शाराय फैसल थाने में तैनात था। MQM लंदन की टारगेट किलर टीम का अहम रुकन था। मुलजिम को महमूद सिद्दीकी ग्रुप की जानिब से भारी रकम फराहम की जा रही थी। है नैब ने आटा चीनी स्कैंडल में भरपूर आजादाना और कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला किया है। मजीद आफ्ताब चौधरी से जानेंगे। आफ्ताब चौधरी मजीद बताएगा।
जी, नैब ज़राए का ये कहना है कि आटा और चीनी स्कैंडल जिसकी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पेश की गई थी, ये एक मेगा करप्शन स्कैंडल है। इस पर नैब किसी भी सूरत खामोश नहीं रह सकता, चूंकि नैब अभी तक इसके तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहा है और जो रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पेश की गई थी, उस रिपोर्ट पर नैब के अफसरान सर जोड़कर बैठे हुए हैं और जल्द ही इससे मुतल्लिक फैसला आ जाएगा और नैब इस मामले की बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का आगाज करेगा। जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे उनको तलबी के नोटिस जारी किए जाएंगे और नैब के जो मुतल्लिका डीजीज होंगे, यानी इस्लामाबाद में अगर कुछ क्राइम हुआ है, रावलपिंडी के हदूद में हुआ है, लाहौर में हुआ है या मुल्तान में या फिर सिंध में हुआ है, तो उस हवाले से तमाम डीजीज को बाज़ाब्ता तौर पर अहकामात जारी कर दिए जाएंगे कि वो आटा और चीनी स्कैंडल मुतल्लिक जो रिपोर्ट है उसको उठा लें और उस पर बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई करें, ताकि कौन से जो फ्रॉड किया गया या जो लूटी हुई रकम है उससे फौरी तौर पर रिकवर करके वापस कौमी खजाने में जमा कराई जाए। तो इस हवाले से आने वाले चंद हफ्ते जो है वो बहुत अहम है, चूंकि ये एक ऐसा स्कैंडल है जिसमें बड़े बड़ी शख्सियात जो है वो उनके नाम है, वो तमाम शख्सियात जिनके सियासी खानदानों से ताल्लुक हैं और ऐसी शख्सियात भी हैं जिनके रिश्तेदार मुख्तलिफ सूबों में हुकूमतों में बैठे हुए हैं, तो उन पर भी नैब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी और तहकीकात का सिलसिला शुरू किया जाएगा। शुक्रिया आफ्ताब चौधरी। शहबाज शरीफ की तलबी के हवाले से नैब ने अलामिया जारी किया है। अलामिये में वाज़ेह किया गया है कि अदम ताउन की बिना पर नैब कानूनी रास्ता अपनाने पर हक बजानिब होगा। अली चौधरी की रिपोर्ट। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आमदन से ज़ायद असासजात केस की तहकीकात के लिए कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ को 22 अप्रैल के लिए दोबारा तलबी का नोटिस भिजवा दिया। इस हवाले से नैब लाहौर ने लामिया भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि नैब लाहौर को मज़कूरा केस मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए शहबाज शरीफ से मुफस्सिल और जामिया जवाबात दरकार हैं, क्योंकि उनके खिलाफ तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। ताहम कौमी इदारे को उनकी जानिब से तहकीकात में ताहाल अदम ताउन का सामना है। शहबाज शरीफ की जानिब से अदम ताउन की बिना पर नैब कानूनी रास्ता अपनाने पर हक बजानिब होगा। में नैब लाहौर की जानिब से सदर मुस्लिम लीग नून को यकीन दहानी करवाई गई है कि उनकी पेशी के मौका पर कोरोना वबा के पेश नजर मुकम्मल हिफाजती इक़दामात किए जाएंगे और समाजी फासले के तहत नैब टीम मुनासिब फासले पर रहते हुए शहबाज शरीफ से सवालात करेगी। अलामिये में शहबाज शरीफ को जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए पेश होने की हिदायत की गई है। इससे कबल शहबाज शरीफ को 17 अप्रैल को तलब किया गया था, मगर अपोजिशन लीडर कोरोना वबा को मद्देनजर रखते हुए नैब के रूबरू पेश नहीं हुए। अली चौधरी, लाहौर। अब तक ब्रेकिंग न्यूज। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि एहतसाब से बचने के लिए शहबाज शरीफ कोरोना का बहाना करके पतली गली से भाग रहे हैं। रियासती इदारे शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग, अकरबा परवरी, टीटी पर मबनी डाकों का हिसाब किताब मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ को अपनी करप्शन और बददियानती का हर हाल में हिसाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि एहतसाब से बचने के लिए शहबाज शरीफ कोरोना का बहाना करके पतली गली से भाग रहे हैं और ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद शहबाज शरीफ साहब ने नैब की पिछली पेशी पे अपना एक तहरीर शुदा माजरतनामा भेजा। उसमें लिखा कि मेरी उम्र 69 साल है, मैं कैंसर का मरीज हूँ और कोरोना वायरस का शिकार होने का अंदेशा है, तो मैं इस वजह से नैब की पेशी पे हाजिरी नहीं डाल सकता। मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछूंगा, शहबाज शरीफ साहब आप लंदन से जब यहाँ आए थे तो आपने एक वीडियो मैसेज के जरिए से बड़ी भड़कें मारी थी कि मैं पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की आवाम के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ूंगा, कोरोना वायरस के खिलाफ आवाम के शाना बशाना खड़ा होऊंगा। अब जब आपकी करप्शन और बददियानती, अकबा परवरी और टीटीज के ऊपर मबनी आपका जो डाके हैं उनका हिसाब किताब रियासती अदारे कर रहे हैं, तो आप कोरोना वायरस का बहाना करके पतली गली से भाग रहे हैं। जनाबे वाला, ये कोई तरीका नहीं है। आप फिर खुद बताएं आप किस तरह कोरोना वायरस के खिलाफ आवाम के साथ खड़े हो सकते हैं और जंग लड़ सकते हैं। आप जब से आए हैं आपने कोई ना कोई ड्रामा किया है। कभी आप लैपटॉप लीडर बन जाते हैं, कभी आप डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स को हिफाजती किट्स भेजते हैं, एक साबुन और एक मास्क और एक जनाब सैनिटाइजर, और फिर मीडिया चैनल्स में कहते हैं जनाब हमने बहुत बड़ा पैकेज दे दिया पैरामेडिकल स्टाफ्स को, डॉक्टर्स को, और हुकूमत पे आप सुबह शाम तनकीद करते हैं। तो जनाबे वाला, कोरोना वायरस का बहाना करके पतली आप सुबह शाम तनकीद करते हैं, तो जनाबे वाला कोरोना वायरस का बहाना करके पतली गली से भागने की कोशिश न करें। आपको अपनी हर किस्म की करप्शन और बददियानती का हिसाब किताब हर हाल में देना है। नैब आपको बुला रही है, आपको जाना पड़ेगा और हिसाब किताब देना पड़ेगा।